Hello students and learners, welcome to the Brainbox tutorials 11 and 12. We were doing Pygmalion Act 1. We have already done part 1 यानी कि यहाँ तक किया है when the note keeper says this I can. अब इसके बाद का पार्ट हम करेंगे पार्ट 2 में और आज हम फिनिश करेंगे पूरे Pygmalion Act 1 को. And I recommend you to go through part 1. ये रहा उसका लिंक. पार्ट 1 को देखो, पार्ट 1 को एक बार वापस से go through करो so that you understand हम कहाँ से चालू कर रहे हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, चलो let us start with part 2 and let us end act 1 today. The flower girl much distressed. It's because I called him captain. I meant no harm to the gentleman. Oh sir, don't let me lay a charge age in me for a word like that. Now flower girl was much disheartened. She says, okay, since I called him captain, that is why you think that I have done something wrong. Oh please. Then वो gentleman को, aged gentleman को उसने बोला, oh sir, please don't let him to accuse me for calling you a captain. मतलब प्लीज उसको समझाओ, मैंने आपको कैप्टन बोला, वो कुछ गलत नहीं बोला, मैंने कुछ वो गलत ना समझ ले उसके लिए. नाउ जेंटलमैन सेज charge? I make no charge. To the note taker he says, really sir, if you are a detective, you need not begin protecting me against molestation by young women until I ask you. Anybody could see that the girl meant no harm. So the gentleman is also explaining himself and her behavior. He says, accuse? Obviously, I do not accuse. And then to the note taker, he says, really, sir, if you are actually a detective, without my prior permission, you cannot bring allegation against this girl. That she was making some promiscuous remarks about me. Okay, everybody knows that the girl has no harmful intention, so उसकी कोई गलती नहीं है. Now the bystanders generally says this, मतलब जितने सारे लोग थे वहाँ पे, they also says demonstrating against police espionage. मतलब they are also exhibiting resentment against पुलिस एक्ट ऑफ स्पाइंग. मे बी उस टाइम में बहुत ज़्यादा ये स्पाइंग एंड ऑल चलता होगा, सो दे ऑल डिमॉन्स्ट्रेटेड against police espionage. Course they could. What business is it of yours? You mind your own affairs. He wants promotion. He does. Taking down people's words. Girl never said a word to him. What harm if she did? Nice thing a girl can't shelter from rain without being insulted, etc., etc., etc. She is conducted by the more sympathetic demonstrators back to her plinth, where she resumes her seat and struggles with her emotion. So all the bystanders started saying, of course we know, why are you interfering others affairs. Note taker को बोल रहा है, by noting down others words he wants to show his efficiency. तुम दिखाना चाहते हो कि तुम बहुत ज़्यादा efficient हो, तुम अपना promotion चाहते हो, इसके लिए सारा कर रहे हो. हमने सुना है the girl never spoke to him, कुछ गलत उसने कुछ कभी बोला ही नहीं. And even if she did, अगर कुछ बोला भी है तो what was the harm, उसमें कुछ गलत थोड़ा बोला. A girl is never free. गर्ल को हमेशा ऐसे ही मान करके चलते हो. She is never free from abuse even when she has done something innocently. और फिर सब उसको, मतलब लड़की के लिए सब कोई बहुत सिंपैथेटिक है, उसको ले जा करके उसको बैठा देते हैं. The bystander, he ain't a tech, he is a blooming busybody. That's what he is. I tell you, look at his boots. One bystander says, oh nahi, he is not a detective, he simply likes to meddle with others affairs. उसकी प्रॉब्लम है कि बीच में नाक घुसाना है किसी की भी प्रॉब्लम में. See his boots. देखो एक bystander ने बोला उसके boots को देखो कितना फाइन है, वो एक अच्छे सोसाइटी का लगता है. ये बोल रहा है उसके boots को देखो, उसके boots को देख के लग रहा है कि इसको हर एक के मामले में बीच में पढ़ना अच्छा लगता है. The note taker turning to him genially, and how are all your people down at Selse? So the bystander who was saying this, he ain't a take, उसको note taker बोल रहा है turning to him, and then he says, and how are all your people who stay at सेल से. सो उसके बातों के, मतलब उसके डायलेक्ट से, उसके एक्सेंट से, बाईस्टैंडर के एक्सेंट से नोट टेकर समझ गया कि ही बिलोंग्स टू द प्लेस कॉल्ड सेल से. तो वो उसकी तरफ घूम के बोलता है, और तुम्हारे वहाँ पे सेल से में सब कैसे हैं. नाउ बाईस्टैंडर ऑब्वियसली एकदम सस्पिशियस हो जाता है कि इसको कैसे पता कि मैं सेल से में रहता हूँ. सो द बाईस्टैंडर सस्पिशियसली सेज, हु टोल्ड यू माई पीपल कम फ्रॉम सेल से? तुमको किसने बताया कि मेरे सारे लोग जो है या मैं जहाँ रहता हूँ वो जगह का नाम सेल से है. The note taker says, never you mind, they did. And then to the girl he says, how do you come up to be so far east? You were born in Lizon Grove. So वो लड़की के डायलेक्ट से भी पहचान गया कि लड़की कहाँ रहती है. So वो बोलता है कि तुम इतनी दूर क्यों आई ईस्ट साइड में?
तुम तो लिसॉन ग्रोव वहां पे रहती थी. Now the flower girl is appalled. She says, "Oh, what harm is there in my leaving Lisson Grove? It wasn't fit for a pig to live in, and I have to pay 4 and 6 a week." And then in tears, oh, woo, 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 that means वो रोने लग जाती है. So the flower girl was actually horrified, and she says कि क्या हुआ, क्या गलती मैंने करी अगर मैंने लिसॉन ग्रोव को छोड़ दिया. It's a dirty place where even a pig cannot live. So मैं भी छोड़ दी और फिर रोने लग गया. द नोट टेकर सेज, लिव वेयर यू लाइक बट स्टॉप दैट नॉइस. मतलब जहां रहना है वहां रहो, प्लीज प्लीज डोंट क्राई, आवाजें मत निकालो. द जेंटलमैन सेज टू द गर्ल, कम कम, ही कांट टच यू, यू हैव अ राइट टू लिव वेयर यू प्लीज. तुम जहां रहना चाहती हो वहां रह सकती हो, ही कैन नॉट हार्म यू. Okay, then a sarcastic bystander says, thrusting himself between the note taker and the gentleman, Park Lane, for instance, I'd like to go into the housing question with you. I would. So a sarcastic bystander suddenly steps in और वो बोलता है, suppose I stay at Park Lane. ठीक है, I would like to argue about this housing matter with you. अब बताओ, तुम सबके घर के बारे में बता रहे हो ना, वो सेल्से में रहता है, ये लिसॉन ग्रो में रहती है. मान लो मैं पार्क लेन में रहता हूँ, अब बताओ पार्क लेन के बारे में कुछ बताओ. The flower girl, subsiding into a brooding melancholy over her basket and taking very low-spiritedly to herself, I am a good girl, I am. वो अपने ही फ्लावर मतलब बास्केट के पास बैठी है, बेंड हो गई, बेंडिंग ओवर हर बास्केट, एंड देन शी इज सेइंग इन लो टोन कि अरे मैं अच्छी लड़की हूँ, आई एम अ गुड गर्ल. द सरकास्टिक बाई स्टैंडर नॉट अटेंडिंग टू हर, मतलब उसको सुना ही नहीं उसने, और वो बोल रहा है, डू यू नो वेयर आई कम फ्रॉम. वो नोट टेकर से पूछ रहा है, मेरे को देख कर तुम बता सकते हो फ्रॉम वेयर डिड आई कम. नोट टेकर प्रॉम्प्टली, हॉक्सटन. टिटरिंग्स. पॉपुलर इंटरेस्ट इन द नोट टेकर्स परफॉर्मेंस इंक्रीजेस. और नोट टेकर उसको वो जैसे ही पूछता है मेरा पता है कहाँ से आया हूँ, और वो तुरंत बोल देता है हाँ हॉक्सटन से. एंड नाउ ऑल पीपल स्टार्ट टू गिगल, सब हंसने लग जाते हैं. नोट टेकर्स एटीट्यूड इंक्रीजेस their curiosity. Now the sarcastic one is amazed and says, well, who said I didn't? Bly me, you know everything you do. So the sarcastic one was actually astounded, and he said, well, no one can deny it. Oh, curse upon me, you seem to know everything. You surely know. तुमको सबके घर के बारे में पता है, मतलब सब कहाँ से आए हैं तुमको पता है. The flower girl, still nursing her sense of injury, ain't no call to meddle with me. He ain't. मतलब वो बोल रही है, he has no cause to interfere with my affairs. Surely he has nothing. She is still sensitive to her own emotional injury, and she is saying this, that he has no cause to interfere with my affairs. The bystander to her says, of course he ain't. Don't you stand it from him. To the note taker he says, see here, what call have you to know about people what never offered to meddle with you? So bystander first is talking to the flower girl and says, of course he has not any. That means no cause. He has no cause to interfere with your affairs. However, you have faced such interference from him. See here, what right have you to know about others who do not want your interference with their affairs? मतलब जो चाहते ही नहीं है तुम बीच में पड़ो किसी उनके मामले में, तुम क्यों उनके बीच में उनके मामलों में पड़े हो. कोई दो जन बात कर रहे हैं, तुम उनके क्यों नोट डाउन कर रहे हो, तुम क्यों बता रहे हो कि वो कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है. वाई आर यू meddling with their affairs. The flower girl, let him say what he likes. I don't want to have no truck with him. No truck with him means any dealings. मतलब मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको जो करना है करने दो. Allow him to say whatever pleases him. The bystander says, you take us for dirt under your feet, don't you? Catch you taking liberties with a gentleman. So the bystander is saying this to the note taker, ki you look down upon us, don't you? I throw you the challenge. You show such audacity with a gentleman. एक gentleman के साथ इस तरीके से गंदे से बात करके दिखाओ. The sarcastic bystander, yes, tell him where he come from if you want to go fortune telling. So the sarcastic bystander बोलता है उसको note taker को कि ठीक है, नाउ टेल हिम वो कहाँ से आया है. तुमको सबका फॉर्च्यून टेलिंग करना होता है ना, सबके बारे में बताना होता है, तो उसके बारे में बताओ. द नोट टेकर, चैल्थनम, हैरो, कैम्ब्रिज एंड इंडिया. नोट टेकर ने बता दिया चैल्थनम, हैरो, कैम्ब्रिज एंड इंडिया. तो जेंटलमैन वॉज एक्चुअली क्वाइट सरप्राइज. ही सेज क्वाइट राइट, मतलब कि हाँ सारा सही बोल रहा है.
ग्रेट लाफ्टर, रिएक्शन इन द नोट टेकर्स फेवर, मतलब सब नोट टेकर की तरफ हो करके अब हंस रहे हैं और बातें कर रहे हैं कि कमाल का आदमी है। एक्सक्लेमेशन ऑफ ही नोज ऑल अबाउट इट, टोल्ड हिम प्रॉपर, हियर हिम टेल द टॉफ where he come from, etc. So they are all saying this कि अरे he correctly knows everything, have you heard how perfectly he tells about the gentleman from where he has come from, उसने बता दिया सारा. Now the gentleman says कि may I ask sir, do you do this for a living at a music hall? मतलब is this your profession at music hall कि ये बताते हो सब? So the note taker says, I've thought of that perhaps I shall someday. Maybe कभी मैं ऐसा करूं, मतलब मैंने कभी सोचा है लेकिन शायद कभी मैं ऐसा ही करूं. और तब तक रेन रुक चुकी थी. द रेन हैज स्टॉप्ड एंड द पर्सन्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द क्राउड बिगिन टू ड्रॉप ऑफ, मतलब सब अपना जाने लगे. दे स्टार्टेड टू लीव. फ्लावर गर्ल वॉज देयर, वो डॉटर और वो उसकी मदर थी. ओके और ये जेंटलमैन था और नोट टेकर था. द फ्लावर गर्ल रिसेंडिंग द रिएक्शन, ही इज नो जेंटलमैन, ही एंट टू इंटरफियर विद अ पुअर गर्ल. फ्लावर गर्ल को अभी भी थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है एंड शी इज डिस्ट्रेस्ड बाय पीपल्स रिएक्शन कि अचानक से सब उसके फेवर में कैसे सब हंसने लग गए और तालियां बजा रहे हैं उसके लिए. सो शी सेज कि ये कोई जेंटलमैनली बिहेवियर नहीं है टू इंटरफेयर विद अ पुअर गर्ल. The daughter, out of patience, pushing her way rudely to the front and displacing the gentleman, who politely retires to the other side of the pillar. What on earth is Freddy doing? I shall get pneumonia if I stay in this draught any longer. और डॉटर, वो जो थी बहन फ्रेडी की, वो बिल्कुल इम्पेशेंट हो गई थी क्योंकि अभी तक फ्रेडी नहीं आया था कैब लेकर के. सो शी इज सेइंग व्हाट फ्रेडी इज डूइंग, why is he taking so long? I'll get sick from pneumonia if I stay uncovered in this cold gust of wind. मुझे तो जाना ही है. The note taker to himself, hastily making a note to her or note of her pronunciation of monia. The way she says pneumonia, he says Earl Scott. That means she belongs to Earl Scott. सो वो यही देख रहा है कौन कैसे बोल रहा है और उनके एक्सेंट से वो पकड़ रहा है कि ये इनका नेटिव प्लेस कहाँ है, ये कहाँ को बिलोंग करते हैं. एंड जब वो बोलता है अर्ल स्कॉट तो डॉटर थोड़ी सी ऑफेंसिव हो जाती है कि एंड कि मेरे बारे में क्यों बोल रहे हो. सो शी सेज विल यू प्लीज कीप योर इम्पर्टिनेंट टू रिमार्क्स टू योरसेल्फ, मतलब अपने ये इररिलेवेंट रिमार्क्स जो हैं वो अपने पास ही रखो, प्लीज मेरे लिए कुछ मत बोलो. द नोट टेकर, डिड आई से दैट आउट लाउड? आई डेंट मीन टू. आई बेग योर पार्डन, योर मदर्स एप्सम अनमिस्टेकेबली. तब वो बोलता है कि बट मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला और न ही इतनी तेज बोला कि तुम तक सुनाई दे. ठीक है, तो फिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? और वैसे भी तुम्हारी मदर जो है वो कहाँ से कहाँ को बिलोंग करती है? एप्सम को बिलोंग करती है. The mother, advancing between her daughter and the note taker. How very curious. I was brought up in Large Lady Park near Epsom. मतलब mother is actually very surprised कि oh how interesting. I was actually brought up in Large Lady Park near Epsom. The note taker says, uproariously amused. Haha, what a devil of a name. Excuse me, to the daughter. You want a cab, do you? So note taker was amused to a great extent after hearing that name, Large Lady Park. So he says, "Oh, what a peculiar name!" And then he says to the daughter, "Excuse me, you want a cab? Do you?" The daughter says, "Don't dare speak to me. मेरे से बात मत करो." The mother, "Oh, please, please, Clara." Her daughter repudiates her with an angry shrug and retires haughtily. "We should be so grateful to you, sir, if you found us a cab." The note taker produces a whistle. "Oh, thank you." She joins her daughter. The note taker blows a piercing blast. So the daughter so said कि please don't dare speak to me, but the mother says, oh please Clara, cool down. और फिर वो note taker को बोलती है कि we should be much grateful if you could kindly get a cab for us. तो note taker जोर से whistle बजाता है. The sarcastic bystander. There, I knowed he was a plain clothes copper. So the sarcastic bystander says the way this man note taker is whistling, मुझे पहले से ही पता था. आई न्यू कि ये प्लेन क्लोथ में एक कॉपर है, दैट मीन्स एक स्पाई है, पुलिस का कोई इन्फॉर्मर है. द बाई स्टैंडर, दैट एंट अ पुलिस विसल, दैट्स अ स्पोर्टिंग विसल. तो बाई स्टैंडर उसको बोल रहा है बट ये कोई पुलिस विसल थोड़ी ना, ये तो एक स्पोर्टिंग विसल है. पुलिस लोगों की विसल अलग होती है. The flower girl, still preoccupied with her wounded feelings. He is no he has no right to take away my character. My character is the same to me as any lady's.
but the flower girl yet is to recover from her hurt feelings. So she says, he has no right to taint my character. My character is as valuable as of any lady. The note taker. I don't know whether you have noticed it, but the rain stopped about 2 minutes ago. The note taker says, I don't know, but तुमने notice किया कि नहीं? But the rain has stopped. तो 2 मिनट हो भी गई है. The bystander. So it has. Why didn't you say so before? And us losing our time listening to your silliness, he walks off towards the strand. द बाईस्टैंडर सेज कि हाँ हाँ 2 मिनट पहले बंद हो गई और तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम अपना वेस्ट कर रहे थे टाइम तुम्हारी बेकार की बातें सुन करके. ये बोल करके वो निकल जाता है. देन द सरकास्टिक बाईस्टैंडर सेज, आई कैन टेल वेयर यू कम फ्रॉम एमवेल, गो बैक देयर. सो सरकास्टिक बाईस्टैंडर ऐसे ही उसको बोलता है, तो ऐसे ही उससे चिढ़ा हुआ था, तो उसको बोल रहा है कि मुझे पता है तुम कहाँ से आए हो, यू हैव कम फ्रॉम ऑफेल, सो जाओ वहां वापस चले जाओ. नोट टेकर हेल्पफुली मतलब उसको करेक्ट कर रहा है कि इट इज नॉट अनवेल, इट इज अनवेल, मतलब एचवी है उसमें, पहले नाम ठीक से बोलना सीखो. सरकास्टिक बाईस्टैंडर सेज, अफेक्टिंग ग्रेट डिस्टिंक्शन ऑफ स्पीच, थैंक यू टीचर, हा हा, सो लॉन्ग. ही टचेज हिज हैड विथ मॉक रेस्पेक्ट एंड स्ट्रॉल्स ऑफ. सरकास्टिक बाईस्टैंडर जो होता है वो सेज थैंक यू टीचर कि मेरे प्रोनाउंसिएशन को आपने ठीक किया, हा हा सो लॉन्ग, और फिर वो जोकिंगली ही टचेज हिज हैट एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट और फिर चला जाता है. द फ्लावर गर्ल, फ्राइटनिंग पीपल लाइक दैट, हाउ वुड ही लाइक इट हिमसेल्फ. मतलब वो उस नोट टेकर के लिए बोल रही कि ऐसे तुम सारे लोगों को स्कैर करते हो, डराते हो, तुम कैसे पसंद करते हो खुद को, अपने आप को भी पसंद करते हो. The mother says, it's quite fine now, Clara. We can walk to a motor bus. Come. She gathers her skirts above her ankles and hurries off towards the strand. फिर क्योंकि बारिश बिल्कुल बंद हो गई है, so the mother is saying the weather is all right now, so we can walk to a bus stop और फिर वहां से हम बस ले लेंगे. कम. और वो जाती है अपने बेटी के साथ. The daughter, but the cab, her mother is out of hearing. Oh, how tiresome, she follows angrily. All the rest have gone except the note taker, the gentleman, and the flower girl, who sits arranging her basket and still pitying herself in murmurs. डॉटर को कैब लेना था तो वो बोल रही थी बट द कैब, पर उसकी मदर सुनती नहीं, वो अपना आगे बढ़ जाती है. तो डॉटर बोल रही है ओ इट इज सो टायरिंग, मुझे चलना पड़ेगा, फिर बस में जाना पड़ेगा, बट वो मदर उसकी सुनती नहीं है, और तो वो डॉटर भी उसके पीछे पीछे चली जाती है. अब सब चले जा चुके हैं, सिर्फ 3 जन है यहाँ पे सेंट पॉल्स चर्च के पोर्टिको पे. फ्लावर गर्ल है, दैट जेंटलमैन एंड द नोट टेकर. The flower girl, poor girl, hard enough for her to live without being worried and sweet. So the flower girl is saying, oh poor girl, it is quite difficult for her to live without being worried and in distress. उसको आदत होगी, उसको अच्छा ही लगता है हमेशा worried और distressed रहना. Gentleman, returning to his former place on the note taker's left. How do you do it, if I may ask? मतलब ये कैसे कर लेते हो कि लोगों को बोलता देख करके you so correctly guess कि which place a man belongs to? The note taker says, simply phonetics, the science of speech. That's my profession, also my hobby. Happy is the man who can make a living by his hobby. You can spot an Irishman or a Yorkshireman by his brogue. I can place any man within 6 miles. I can place him within 2 miles in London, sometimes within 2 streets. So note taker says कि it's simply by phonetics, ये एक साइंस है, साइंस ऑफ स्पीच, एंड दैट इज माई प्रोफेशन एंड ऑल्सो माई हॉबी. और बहुत कम लोग होते हैं, अ मैन इज हैप्पी, जो अपनी इफ ही लिव्स बाय हिज हॉबी, मतलब अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बना लो, तो कुछ कम लोग ही होते हैं, और उन कम लोगों में से मैं हूँ, आई एम द लकी वन. एंड कैसे वो पहचान जाता है, कैसे कितना पहचान सकता है, क्या उसकी कैपेबिलिटी है, वो बता रहा है. दैट आई कैन रिकॉग्नाइज फ्रॉम द एक्सेंट कि वो आयरिश मैन है या यॉर्कशायर में रहता है. देन आई कैन टेल द प्लेस, 6 माइल्स के अंदर अंदर कोई आदमी यहाँ के आसपास रहता हो, मैं बता सकता हूँ. और इवन आई कैन टेल द प्लेस विद इन 2 माइल्स, लंदन के अंदर 2 माइल्स के अंदर अंदर का बता सकता हूँ. इनफैक्ट 2 स्ट्रीट्स के गैप में भी लोग रहते हैं, मतलब अलग अलग जगहों का भी, एक सिटी के अंदर अलग अलग स्ट्रीट्स के, अलग अलग क्या बोलते हैं एरिया के भी लोगों का एक्सेंट थोड़ा चेंज होता है, वो भी मैं उनकी बातों को सुन के बता सकता हूँ. द फ्लावर गर्ल, ought to be ashamed of himself, unmanly coward. So the flower girl says he should be ashamed of spying on others stealthily like a coward man. कि क्या सबके ये तो एक कवार्ड, मतलब एक कवार्ड मैन, ये तो एक कवार्ड इंसान की पहचान हो गई कि आप सबके मामले में घुसो कि वो कहाँ से आया है, क्यों जानना है.
द जेंटलमैन, बट इज देयर अ लिविंग इन दैट? मतलब क्या इससे कुछ अर्न भी करते हैं? The note taker. Oh, yes, quite a fat one. This is an age of upstarts. Men begin in Kentish Town with 80 pounds a year and end in Park Lane with 100,000. They want to drop Kentish Town, but they give themselves away every time they open their mouths. Now I can teach them. So बताते हैं कि of course I can earn, and any man can earn quite a lot. Then he says this is an age when people are trying to raise their status. राइट, अभी मैन में स्टार्ट देयर लाइफ एट नॉट सो पॉश एरिया जैसे कि कैंटिश टाउन में, अर्निंग 80 पाउंड्स अ ईयर, बट अल्टीमेटली दे एंड अप इन पार्क लेन, वो पॉश एरिया, वहां पे 100,000 अ ईयर वो कमा सकते हैं. 80 पाउंड्स अ ईयर से 100,000 पाउंड्स अ ईयर तक कमा सकते हैं. नाउ दे वांट टू गेट रिड ऑफ द स्टिग्मा ऑफ कैंटिश टाउन, बट कैन नॉट सिंस दे स्पीक इन दैट टिपिकल एक्सेंट. अब वो आ तो गए हैं और इतना अच्छा कमाते हैं, बट वो क्योंकि बिलोंग करते हैं उसी नॉट सो पॉश एरिया के, तो वो जब बात करते हैं तो उनके एक्सेंट में वो टोन अभी भी आ जाता है. तो वो उससे दे वांट टू गेट रिड ऑफ दैट, और वो मैं कर सकता हूँ. इफ दे स्टार्ट टेकिंग लेसन्स फ्रॉम मी, तो मैं वो कर सकता हूँ. तो दिस इज सो इम्पोर्टेंट कि अभी वो पार्क लेन में रहते हैं और वही पॉश एक्सेंट अगर उनमें आ जाए तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा कभी भी उनको देख करके कि ये कभी किसी नॉट सो पॉश एरिया में रहते थे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द फ्लावर गर्ल. लेट हिम माइंड हिज ओन बिजनेस एंड लीव अ पुअर गर्ल. मतलब लेट हिम माइंड हिज ओन बिजनेस एंड प्लीज डोंट मेडल विद पुअर गर्ल्स अफेयर. द नोट टेकर एक्सप्लोसिवली. वुमेन, seize this detestable boohooing instantly or else seek the shelter of some other place of worship. मतलब कितनी देर से सुन रहा हूँ तुम बिना मतलब मेरे ऊपर कमेंट कर रहे हो, सो प्लीज स्टॉप योर डिस्टेस्टफुल कमेंट्स इमीडिएटली, और नहीं तो कहीं और जाकर के बैठो. Seek other place for shelter. The flagger with feeble defiance. I have a right to be here if I like, same as you. फ्लागल थोड़ी सी वीक हो गई कि अचानक से कोई उसको डांट दिया, और फिर बोली कि बट आई हैव द राइट टू बी हियर एज यू हैव द राइट. आप यहाँ खड़े हो सकते हो, मैं भी यहाँ खड़ी हो सकती हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता. द नोट टेकर. A woman who utters such depressing and disgusting sounds has no right to be anywhere, no right to live. Remember that you are a human being with a soul and the divine gift of articulate speech, that your native language is the language of Shakespeare and Milton and the Bible, and don't sit there crooning like a bilious pigeon. तो नोट टेकर उसको बोलता है कि a woman who makes a disgusting and meaningless sound while speaking has no right to be anywhere. उसको तो कहीं नहीं रहना चाहिए, तुमको तो रहना ही नहीं चाहिए. इस तरीके से आवाजें निकालती हो, इस तरीके से बात करती हो. तुमको यू शुड बी अवेयर कि यू आर अ ह्यूमन बीइंग विद अ सोल एंड अ रेयर गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली, अगर थोड़ी तो मेहनत करो तो. बिकॉज जैसे कि ग्रेट राइटर्स लाइक शेक्सपियर एंड मिल्टन रोट इन योर लैंग्वेज, इवन द बाइबल हैड बीन रिटन इन इंग्लिश. एंड डोंट कीप ऑन वाइनिंग लाइक अ सिक पिजन. तुम सिर्फ इस तरीके के लैंग्वेज में एक ही एक चीज बोले जा रही हो. ओके, सो मतलब तुमको अपनी एक्सेंट, अपने बिहेवियर, अपने स्टेटस को ऊंचा करने का पूरा हक है, तो तुम उस पर काम करो, न कि किसी एक चीज को पकड़ के बैठ जाओ और रोने लग जाओ. The flower girl says, quite overwhelmed and looking up at him in mingled wonder and deprecation without daring to raise her head. Oh, the flower girl, that means she has a mixed reaction of wonder and disapproval, but she does not dare to raise her head. तो वो आऊ बोल रही है. द नोट टेकर whipping out his book. Heavens, what a sound. मतलब वो आऊ कर रही है ना, तो वो बोल रहा है, वो गुस्सा भी हो रहा है, उसको इरिटेट भी हो रहा है. सो वो अपना नोट बुक निकाल करके लिख भी रहा है और फिर बोल रहा है what peculiar sound. एंड देन ही राइट्स इट. वो लिखता भी है वैसे ही कि इस तरीके की ये लैंग्वेजेस यूज करती है, ये ऐसा इसका एक्सेंट है. द फ्लावर गर्ल tickled by the performance and laughing in spite of herself, gone. That means carry on. मतलब फ्लावर गर्ल को भी मजा आ गया इस जेस्चर से कि कोई उसकी नकल कर रहा है, और वो खुद ऐसे बोलती है, कोई सामने वाला उसको दिखा रहा है चला करके कि देखो तुम आओ ऐसे बोलती हो, तो वो जब देखती है और उसको लिखते हुए भी देखती है कि वो इसका एक्सेंट का मजाक उड़ा रहा है और लिख रहा है, तो उसको भी हंसी आ जाती है फ्लावर गर्ल को, और वो बोलती है कैरी ऑन, मतलब करो करो और करो. द नोट टेकर. You see this creature with her curbstone English?
The English that will keep her in the gutter to the end of her days. Well, sir, in 3 months, I could pass that girl off as a duchess at an ambassador's garden party. I could ever get her a place as lady's maid or shop assistant, which requires better English. That's the sort of thing I do for commercial millionaires. And on the profits of it, I do genuine scientific work in phonetics and a little as a poet on Miltonic lines. सो नोट टेकर बोलता है कि मतलब वो जेंटलमैन को बोल रहा है कि यू से दिस गर्ल स्पीकिंग सच अ डिग्रेडेड इंग्लिश, ऐसा इंग्लिश वो अगर बोलती रही तो इट विल नेवर अलाउ हर टू इम्प्रूव हर स्टेट ऑफ बीइंग। वो जहाँ है जैसे गंदे स्टेट में है, जितने लोअर स्टैंडर्ड रह रही है वो वैसे ही हमेशा रहेगी, वैसे ही मर जाएगी। देन ही सेज बट विद इन 3 months अगर ये मेरे अंडर रही तो आई कैन ट्रांसफॉर्म दिस गर्ल इनटू एन एलिगेंट लेडी so that she can be easily passed off as a duchess of an ambassador's garden party। मतलब किसी एम्बेसडर के गार्डन पार्टी में मैं लेके जाऊं तो कोई भी इसको देख के यही बोलेगा कि ये कोई डचेस है। डचेस मीन्स नो लेस देन अ क्वीन, तो उस रॉयल फैमिली को बिलोंग करती है, ऐसा इसको मैं बना दूंगा। ठीक है, मतलब अपेयरेंस वाइज भी और एक्सेंट वाइज भी। और आई कैन प्लेस हर एज अ लेडीज मेड और अ शॉप असिस्टेंट विच रिक्वायर्स टू स्पीक रिफाइंड इंग्लिश, या फिर उसको एक लेडी मतलब एक डचेस के मेड मतलब उसके असिस्टेंट या फिर शॉप असिस्टेंट जैसा भी बना सकता हूँ, जिनको भी बोलने के लिए एक अच्छी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन जरूरी है। मैं 3 months के अंदर उसको वैसा बना सकता हूँ। द जेंटलमैन सेज आई एम माई सेल्फ अ स्टूडेंट ऑफ इंडियन डायलेक्ट्स एंड तो जेंटलमैन बोलता है कि हाँ आई कैन ऑल्सो बिलीव दिस बिकॉज आई एम ऑल्सो स्टडिंग इंडियन डायलेक्ट्स। सो द नोट टेकर इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दिस जेंटलमैन बिकॉज उनकी जो जो प्रोफेशन है, जो हॉबीज है वो मिलती जुलती है। सो नोट टेकर इज ईगरली सेइंग आर यू डू यू नो कर्नल पिकरिंग द ऑथर ऑफ स्पोकन संस्कृत, कि अच्छा रियली, तो डू यू नो कर्नल पिकरिंग, ही इज ऑथर ऑफ स्पोकन संस्कृत। सो द जेंटलमैन सेज आई एम कर्नल पिकरिंग, हु आर यू। सो वो जिसको खोज रहा है नोट टेकर वो ये जेंटलमैन ही है। वो बोलता है हाँ, जो स्पोकन संस्कृत जिसने लिखा है, द ऑथर, आई एम द ऑथर ऑफ स्पोकन संस्कृत, आई एम कर्नल पिकरिंग, हु आर यू। Note taker says Henry Higgins, author of Higgins Universal Alphabet. So he is introducing himself as Henry Higgins, who is author of Higgins Universal Alphabet. Pickering enlivened, I came from India to meet you. Now Pickering भी बहुत enthusiasm के साथ बोलता है कि I came from India to meet you. See, the both were searching for each other. Note taker, he is Higgins, प्रोफेसर हिगिंस, हेनरी हिगिंस वो खोज रहा था स्पोकन संस्कृत के ऑथर को, और जो जो है कर्नल पिकरिंग, और कर्नल पिकरिंग खोज रहा था हेनरी हिगिंस को, इंडिया से मिलने के लिए आया था उससे, और वो इधर है। हिगिंस, आई वॉज गोइंग टू इंडिया टू मीट यू, मैं तो इंडिया जाने वाला था आपसे मिलने के लिए। पिकरिंग, वेयर डू यू लिव? हिगिंस, 27A विम्पोल स्ट्रीट, कम एंड सी मी टुमारो। ठीक है, उन लोग का अपॉइंटमेंट भी फिक्स हो गया कि मिल सकते हो। पिकरिंग, I'm at the Carlton. Come with me now and let's have a jaw over some supper. वो बोल रहा है कि ठीक है, आई एम स्टेइंग एट कार्ल्टन, अभी चलो मेरे साथ में थोड़ा सा कुछ खाते पीते हैं और कुछ बात करते हैं। हिगिंस, राइट यू आर, हाँ वो मतलब ओके, आई एग्री। द फ्लावर गर्ल टू पिकरिंग एज ही पासेस हर, बाय अ फ्लावर काइंड जेंटलमैन, आई एम शॉर्ट फॉर माई लॉजिंग। फ्लावर गर्ल पिकरिंग को बोल रही है कि प्लीज बाय अ फ्लावर काइंड जेंटलमैन, आई एम शॉर्ट ऑफ मनी टू गो बैक टू माई होम। Pickering, I really haven't any change. I'm sorry, मेरे पास change नहीं है. And then he goes away. Now Higgins, shocked at girl's mendacity. Liar, you said you could change half a crown. Higgins को याद था, उसने ये चीज बोला था, तो he says कि you are a liar. You told earlier that you could change half a crown. यानी आपके पास पैसा तो है. The flower girl rising in desperation. You ought to be stuffed with nails. You ought. Flinging the basket at his feet. Take the whole blooming basket for 6 pence. The church clock strikes the second quarter. Now the flower girl is standing up helplessly. So वो बोलती है, oh you should be hailed, you should be. And she throws the basket at his feet कि जाओ सारे ले जाओ flower, पर मुझे 6 pence दे दो. Now Higgins, hearing in it the voice of God, rebuking him for his Pharisaic want of charity to the poor girl. A reminder. He raises his head solemnly, then throws a handful of money into the basket and follows Pickering. So at that time, जब वो क्लॉक भी उसी टाइम स्ट्राइक कर रहा है, तो हिगिंस
feels that this is the voice of God rebuking him कि तुम थोड़ा सा चैरिटी नहीं कर सकते हो पुअर गर्ल को. So he says कि वो रिमाइंडर ऑफ वर्चुअस क्वालिटी. और फिर वो अपने रुपया निकालता है, कुछ कॉइन्स निकालता है, बास्केट में रखता है आउट ऑफ ग्रेट रेस्पेक्ट. और फिर he follows Colonel Pickering. The flower girl picking up a half crown. Ah, ooh, ooh. Picking up a couple of florins. Ah, ooh, ooh. Picking up several coins. Ah, ooh, ooh. Picking up a half sovereign. Ah, ha, ooh, ooh. मीन्स वो इतनी खुश होती जा रही, धीरे धीरे उसकी खुशी बढ़ती जा रही है. पहले हाफ अ क्राउन मिला, फिर और फ्लोरेंस मिले, फिर बहुत सारे कॉइन्स मिले, फिर सॉवरेन मिला, हाफ सॉवरेन मिला. तब तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, इसलिए वो थोड़ा लंबा भी था. एट दैट टाइम फ्रेडी कम्स. एट लास्ट वो कैब लेकर आया आई गेस. तो फ्रेडी स्प्रिंगिंग आउट ऑफ अ टैक्सी कैब, हाँ वो कैब लेकर के आया है. Got one at last. Hello to the girl. Where are the two ladies that were here? वो बेचारा इतनी देर बाद कैब लेके आया, लेकिन उसकी मदर और सिस्टर ऑलरेडी जा चुकी है. वो इस लड़की से पूछ रहा है कि अरे मुझे एट लास्ट मिल गया कैब, वो कहाँ है वो दो लेडीज who had been here? They have gone. The flower girl. They walked to the bus when the rain stopped. उसने बता दिया कि भाई वो तो बस से निकल गई जब रेन रुक गया. तो फ्रेडी and left me with a cab on my hands. Damnation. मतलब और मुझे यहाँ पे छोड़ दिया कैब के साथ, which I managed to hire with so much of effort, so much of trouble. Oh, what a harassment. The flower girl with grandeur. Never you mind, young man. I'm going home in a taxi. She sails off to the cab. The driver puts his hand behind him and holds the door firmly shut against her. Quite understanding his mistrust, she shows him a handful of money. 8 pence ain't no object to me, Charlie. He grins and opens the door. So flower girl says, never mind young man, I'll go home by taxi. तुम्हारी taxi waste नहीं होगी. And she goes off to the cab. And then the driver is looking at this girl. So the driver holds the handle of the rear door firmly so that she cannot get into the cab. क्योंकि देख करके वो लग रही है कि बहुत नीचे लेवल की है, तो वो क्या टैक्सी करेगी. सो लड़की को समझ में आ गया कि ही इज अफ्रेड कि मैं इसकी टैक्सी में कैसे बैठूंगी, रुपया रुपया है कि नहीं उसके पास में. सो अंडरस्टैंडिंग हिज फियर, शी शोज हिम हर हैंडफुल ऑफ मनी कि देखो मेरे पास है, पैसे हैं. आई एम नॉट बॉदर्ड बाय द टैक्सी फेयर चार्ली. तो वो बहुत स्माइल करके और ही ओपन्स द डोर. Angel Court, Drury Lane, round the corner of Micklejohn's oil shop. Let's see how fast you can make her hop it. She gets in and pulls the door to with a slam as the taxicab starts. So Lisa gives him the address, Angel Court, Drury Lane, next to Micklejohn's oil shop. और फिर उसको बोलती है, let's see कितना fast मुझे वहां तक लेकर के जा सकते हो तुम. And Freddie says, well, I am dashed. Means I am disappointed or I am frustrated. Because now he is left alone. उसकी mother और sister भी जा चुकी है already. और taxi भी जा चुकी है. So here our Act 1 ends. पिगमेलियन का. आई होप यू लाइक्ड इट. एक्ट 2 में भी हम जल्दी ही आएंगे. आप एक्ट 1 को वापस से पढ़िए, अच्छे से सुनिए मेरे इस पर्टिकुलर वीडियो को, so that you understand it line by line. And if you like the video, please do hit the like button, subscribe my channel, share it with your friends because sharing is caring. Bye bye. Jai Hind.